Hello friends, and here I am with another video on matrices, and this video covers the you can say we are going to start with the 12th standard HSC board portion on matrices chapter. Actually, as I said, I have already posted two videos earlier which actually covers the revision of the chapter matrices from 11th standard. Okay, this is the third video which I am going to cover for 12th standard portion on matrices. A very simple chapter, a very scoring chapter. I hope all of you understand it. So in a few lectures I'll finish with the exercises as well of matrices from the you can say state board books, as well as we will cover MCQ questions on matrices. Some generalized questions which are expected and some already you can say the questions which have appeared in the exams previously. So beforehand we'll start with what exactly the chapter covers. So you can check it out. What is the portion of matrices in HSC, the 12th standard, that is. So what is the first thing? Is elementary transformations. That's the first thing to be covered. Elementary इस वर्ड का मीनिंग है सिंगल, वन, इंडिविजुअल, उसको हम लोग एलिमेंट्री कहते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ड का मीनिंग है चेंज. तो एक्चुअली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मींस सिंगल चेंज. चेंजिंग अ सिंगल थिंग. What exactly and how exactly we are going to cover one by one. The second is finding inverse of a matrix. So guys, what exactly is the inverse of a matrix? I hope you by this time you know what is a matrix. So guys, अगर A नाम का एक मैट्रिक्स है, अगर A नाम का एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स डिनोट किया जाता है A raised to minus 1. A raised to minus 1. तो आपको सबको लगे सर अच्छा सर रेसिप्रोकल करना है. बिल्कुल नहीं, रेसिप्रोकल नहीं करना है. A इनवर्स कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा, एंड सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन A इनवर्स एज वेल. A इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A raised to minus 1. इसको पढ़ने का तरीका है इनवर्स ऑफ A या A इनवर्स. ये फाइंड करने के दो तरीके हम लोग सीखने वाले हैं. एक तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक 1 अच्छे से करना पड़ेगा. उसके बाद है एडजॉइंट मेथड, और इस मेथड के लिए, एडजॉइंट मेथड के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए. सो उससे हम लोग एडजॉइंट मेथड कहते हैं, जिसमें हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स यूज करके हम लोग एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं. सो अब तक ये चीजें हो गई. उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस कहां अप्लाई होता है? गाइस जनरली हमने 10th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है. साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 एंड 3x + 6y = 10. समझो. तो इसको हम लोग सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली टू गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y. To get the values of the unknowns x and y. In the same way, ये ऐसा नहीं, इससे बड़ा, मतलब ये guys, what is this? This is called system of linear equations. इसको कहते हैं system of linear equations. So इसमें दो equations है और दो unknowns है, x और y दो unknowns है. So this is a system which has two equations in two unknowns. इसको solve करने का 10th standard का method है, लेकिन यही सिस्टम सॉल्व करने के और भी तरीके हैं. मैट्रिसेस यूज करके हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं. रादर आपने 11th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा होगा. इफ यू रिमेंबर, क्रैमर्स रूल यूज करके हम लोग, डिटरमिनेंट्स यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑलरेडी हम लोग अलग-अलग टाइप्स सीख रहे हैं टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. सो अब हमको ऐसा सिस्टम या इससे बड़ा मतलब क्या? 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स. 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन. जैसे ये लिखा मैंने 2x + 3y + 4z = 5, 2x - y + z = 12, x + 2y + 5z = 24. मैंने कुछ भी रैंडमली लिखा है. We are not going to solve that. लेकिन इसको हम लोग कहेंगे this is a system of linear equations. How many unknowns are there? 3 unknowns are there. And how many equations are there? 3 equations are there. So 3 equations है, 3 unknowns है. इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे using matrices. तो ये मैट्रिसेस को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं. There are two methods by which we can solve. One is method of inversion. Method of inversion, सर ये क्या है अभी? Inversion मतलब इनवर्स. इसको यूज करके हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे. मैट्रिक्स जो होगा उसका इनवर्स यूज करके हम लोग उस सिस्टम को सॉल्व करेंगे.
और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन या फिर मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन मेथड ऑफ रिडक्शन ये उसका नाम है। सो एग्जैक्टली ये मेथड्स क्या है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस वी आर गोइंग टू सी। Okay, so this is about the chapter. So what does the chapter covers? सबसे पहले तो हमको ये स्टडी करना है what are elementary transformation। वो होने के बाद हमको इनवर्स फाइंडिंग मेथड देखने, दो मेथड्स है, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा है एडजॉइंट मेथड टू फाइंड इनवर्स। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का कैसे यूज होता है, दो तरीके से देखना है हमको, एक तो मेथड ऑफ इन्वर्जन, दूसरा मेथड ऑफ reduction. Okay, so one by one we will start with the things of this chapter. The first thing is elementary transformations. Yes, so students, elementary transformation, जैसे मैंने कहा elementary का मतलब होता है, okay, elementary मतलब single change, transformation का मतलब होता है change. So students, matrices में okay बेसिकली तीन टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है। आई विल रिपीट, तीन टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है। हम लोग एक एक करके वो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। सबसे पहली चीज है, मैं कुछ पहले मैं ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताऊंगा और कुछ इलीगल चीजें जो आप नहीं कर सकते वो उसके बाद बताऊंगा, मतलब सम डूज एंड सम डोंट्स, ओके, ऑन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम लोग डूज देखेंगे, जो जो हम लोग कर सकते हैं मैट्रिसेस में, जो वैलिड है। ओके, सो सबसे पहली चीज जो वैलिड है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ओके, इज वैलिड। मतलब कोई भी दो रो को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना ये वैलिड होता है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, ऐसा क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले हम लोग किन्हीं दो रो को या दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अज्यूम करो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 एंड 4। यहां पे ध्यान दो, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 एंड 4, अगर मुझको इसमें से, गाइस ऑब्वियसली इसमें दो रोज है, हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज और ये होते हैं कॉलम्स। सो अगर मुझको ये रो और ये रो स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका R1 इंटरचेंज्ड विद R2। सो प्लीज ये डबल इंप्लाइज वगैरह नहीं है गाइस, R1 और R2 इंटरचेंज करने हमको, ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं R12। ध्यान रखो, R12 लिखो, R21 मत करो, उसको R12 लिखो। ओके, जनरली फॉलो दिस ऑर्डर। So these are the two ways in which we can represent the interchange of rows. Okay, so guys, अगर ये लिखा या ये लिखा तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा R1 और R2 स्वैप करना है, मतलब ये रो और ये रो स्वैप इंटरचेंज करना है। सो 3 4 ऊपर चला जाएगा और 1 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 3 4 ऊपर चला गया और 1 2 जो है वो नीचे आ गया। सो गाइस यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्वल टू, नॉट एट ऑल। दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गाइस, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे पता है आपको, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी 1 और यहाँ पे 1 थोड़ी है, तो ये सेम नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है। सो सर अगर ऐसा कुछ किया हमने तो कैसा लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पे ऐसा मार्क डालना पड़ेगा आपको। ये मार्क हमने बहुत जगह देखा है, सिमिलैरिटी में देखा है, सही है, 10th स्टैंडर्ड में सिमिलैरिटी में देखा है, या फिर अभी लॉजिक में हमने देखा है। ओके, ये नॉट नेगेशन है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है इक्विवेलेंट। यहाँ पे इसका मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट टू, मतलब ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स डिराइव हुई है बाय परफॉर्मिंग सम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस साइन को हम लोग इक्विवेलेंट टू कहेंगे, समझ रहे हो? उसी तरह से जैसे मैंने अभी क्या किया है, R1 और R2 इंटरचेंज किया है, सही है, R1 R2 इंटरचेंज कर दिया। ओके, सो उसी तरह से हम लोग कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हैं, हम लोग कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अज्यूम करो यही मैट्रिक्स है, तो मैं ये कर सकता हूं कि C1 और C2 इंटरचेंज कर देता हूं। सर C1 गाइस, अब ये तो क्लियर होना चाहिए, कैपिटल R का मतलब है रो और C का मतलब है कॉलम। सो R1 R2 मतलब रो 1 और रो 2, C1 C2 का मतलब है कॉलम 1 कॉलम 2, इंटरचेंज करना। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है C12। दिस इज अगेन अ वैलिड
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ये दोनों है, इनको इंटरचेंज करना है हमको, कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो ये दोनों कॉलम्स हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम्स को इंटरचेंज कर लिया, 4 2 पहले आ गया, ये कॉलम आगे आ गया, ये पीछे चला गया, 3 और 1, और यहां पे क्या होगा, इक्वल टू होगा? बिल्कुल नहीं, यहां पे होगा इक्विवेलेंट टू। सही है? ओके, सो दिस इज द वे वी कैन परफॉर्म इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। ये एक वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करना या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना इज अ वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज रिटन एज R1 स्वैप्ड विद R2 और R12 या C1 स्वैप्ड विद C2 और C12। Okay, I hope you understood the first operation. We'll move on to the second one. अभी जो सेकंड ऑपरेशन है गाइस, यहां पे देखो आप पढ़ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर, बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ओके, मतलब आप एक मैट्रिक्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ओके आई एम सॉरी, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर से, कांस्टेंट से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी इक्विवेलेंट होगा। एग्जांपल देता हूं मैं, अज्यूम कर लो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, अगेन 2 क्रॉस 2 ले लेता हूं एग्जांपल की तौर पे। ओके, 2 4 3 7 समझ लो। अभी गाइस मैं इसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट से, एक रियल नंबर से जो नॉन जीरो है उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ओके, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे आप देख सकते हो, मैंने अब जो लिखा है वो आपको समझना जरूरी है। मैंने लिखा है 2R2। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 2R2 इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई करो R2 को, R2 मतलब रो 2, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। अगर सेकंड रो को करना है तो पहला रो वैसे ही रहेगा, 2 4 पहला रो वैसे ही रहेगा, और सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पे हो जाएगा 6 and 14, 3 2s are 6, 7 2s are 14। ओके, तो यहां पे सर साइन कौन सा? इक्विवेलेंट आएगा, समझ रहे हो? और दूसरी चीज है 2R2, वैल्यू किसमें स्टोर हुआ? वैल्यू किसमें स्टोर हुआ? R2 में ही ना। R2 में R2 को 2 मल्टीप्लाई हुआ और R2 में चेंज हुआ, सो जिसमें भी चेंज हो रहा है उसका नाम यहां पे, मतलब 2 times R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। कैसे पढ़ रहा हूं देखो मैं इसको, 2 times R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और वैल्यू किसमें स्टोर कर दो? R2 में स्टोर कर दो। तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर थिंग। वेयरएज ओके, हम लोग ये ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया 3 times C1, तो इसका मतलब क्या है सर? C1 को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वैल्यू स्टोर्ड इन व्हाट? ऑब्वियसली C1, कॉलम 1, C1 मतलब कॉलम 1। सो इस केस में ओके, जो अपना आंसर आएगा कॉलम 1 को, सॉरी ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 18 हो जाएगा। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं होगा, 4 14 वैसे ही रहेगा, सो 6 18 4 14। I hope you have understood this. Okay, so इसमें कॉलम 1 में चेंज हुआ, समझ रहे हो? ओके, एंड इक्विवेलेंट है, इक्वल टू नहीं। तो आपको लगेगा सर 2 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है? नहीं, आपको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जीरो से नहीं कर सकते। सो क्या करना अलाउड नहीं है? क्या करना अलाउड नहीं है? अगर आपने ये लिखा 0R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R2, ये अलाउड नहीं है। 0R2 जीरो से मल्टीप्लाई करना किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ये अलाउड नहीं है। हाँ, और एक चीज जो अलाउड है, आप डेसिमल से भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन में मतलब रैशनल नंबर से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ये कर लिया देखो, ओके, R2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये चलेगा, वैल्यू स्टोर्ड इन व्हाट? R2, सेकंड रो, मतलब अब समझो इसका है, ओके, इसको हमने किया तो सेकंड रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करना। सो फर्स्ट रो में कुछ नहीं होगा, 6 और 4 वैसे रहेगा, पहला रो वैसे ही, और सेकंड रो को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो ये सर ये क्यों पॉसिबल है? गाइस 2/3 इज अ रियल नंबर ना, ये कोई भी नॉन जीरो स्केलर चलेगा, कोई भी नॉन जीरो स्केलर, एंड स्केलर इज एनी रियल नंबर एज आई सेड, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। तो जीरो से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। 2/3 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, वो भी ठीक है, -1 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया किसी भी रो को, -1 into R1 कर लिया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, ये भी ठीक है, ओके, ये भी चलेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ भी चलेगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो हम लोग किसी भी रो को
एक स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से, या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू गेट अ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, नॉट अ इक्वल मैट्रिक्स. सो ये दो फर्स्ट टू वैलिड यू कैन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्या अलाउड है? सबसे पहली चीज आप रो को स्वैप कर सकते हैं, कॉलम को स्वैप कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई करना मतलब सर डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर हाफ से किया मल्टीप्लाई, तो हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या? 2 से डिवाइड करना हो गया ना. ओके, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे देखो हाफ C1, इसका मतलब क्या है? हाफ से मल्टीप्लाई किया C1 को, मतलब 6 डिवाइड बाय 2 हो गया ना वो. ओके, हाफ इंटू 6 क्या हो गया? हाफ इंटू 6 मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 3 सर. यस और नो? सो ओके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही बात है, ठीक है, इस केस में बाय अ कांस्टेंट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. हाफ से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, रो को या कॉलम को, यू गेट इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. सो दीस आर द फर्स्ट टू वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. Yes. So this is the third elementary transformation which I am showing. Very very important. Okay. And maximum silly mistakes which happen है simple ही, लेकिन maximum silly mistakes happen in this type of transformation. ये transformation perform करते time बहुत लोग mistakes करते हैं. Okay. तो we will understand what exactly is the concept of it. Okay. First read it. Adding or subtracting the scalar multiples of all the elements of any row or column with the corresponding elements of any other row or column. ओके, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ओके है आसान. आप अगर ठीक से देखोगे, मैं एग्जांपल बता के आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा. जस्ट पे अटेंशन हियर गाइस. एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एनी रो, मतलब किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने अभी भी इसके पहले किया था 2r2 3c3 3c2 जो भी किया. ओके, सो किसी भी रो के सारे एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और वो जो मल्टीपल आया वो किसी भी दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग स्केलर मल्टीपल्स, किसी भी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी आंसर आया वो किसी और रो को ओके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो हम लोग उसको ओके एक वैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशन पकड़ते हैं, कंसीडर करते हैं. अब ये आपको मैं बताता हूं थ्रू एन एग्जांपल. प्लीज पे अटेंशन हियर. अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, समझो अभी इस बार मैं ओके एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं. अज्यूम करो ये है 1 2 3, ये है 2 2 7 1, ओके ये है 3 2 5. अब जो मैं कर रहा हूं ये ठीक से देखो. ओके, मैं क्या कर रहा हूं? ओके, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ओके, और फिर उसको सेकेंड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझो, और फिर मैं उसको ऐड कर रहा हूं फर्स्ट रो के साथ, वैल्यू स्टोर कर रहा हूं फर्स्ट रो में. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये पर्पस बाद में समझेंगे. पर्पस ये क्या कर सकते हैं पहले वो ध्यान देंगे. ओके, तो मैंने क्या लिखा है देखो, r1 प्लस 2r2. तो यही जो अभी ऊपर लिखा यही मैंने परफॉर्म किया. किसी भी रो के एलिमेंट्स को, r2 मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है 2 से, सो स्केलर मल्टीपल है 2 का, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. यहां पे मैंने ऐड किया है. ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना. सो इट इज r1 प्लस डबल r2. गाइस, सर आपने यहां पे r1 क्यों लिखा है? एक बात याद रखो, दिस इज अ राइटिंग कन्वेंशन. आप जब ऐसा कोई ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो भी नाम पहले लिखा है आपने, जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं, जिस रो में आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम पहले लिखना है और उसी में वैल्यू स्टोर करना है. दिस इज अ राइटिंग कन्वेंशन एज आई सेड. ओके, तो ये रूल है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग. ओके, एक तरीका है लिखने का. सो अगर मुझको r1 में चेंज स्टोर करना है तो मैं r1 का नाम पहले लिखूंगा और वो नाम यहां पे लिखूंगा. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो अब सर ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करना है बता रहा हूं. सर r2 भी डबल हो जाएगा? r2 डबल नहीं होगा, चेंज सिर्फ r1 में होगा, चेंज सिर्फ r1 में होगा. इसीलिए तो कहते हैं एलिमेंट्री, मतलब सिंगल रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल रो में. ओके, सो चलो हम लोग ये परफॉर्म करते कैसे. r1 गाइस, r1 के एलिमेंट्स हैं 1 2 3. सो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3, ये है r1 के एलिमेंट्स. समझ रहे हो, बीच में है प्लस प्लस. ओके, 2 टाइम्स r2, सो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय r2 2 7 1,
271. ओके, ये है R2. सो ऑपरेशन आई होप आप समझ गए क्या ऑपरेशन है. R1 प्लस डबल R2. सो ये R1 प्लस डबल R2. सो पहले इसको डबल करो, पहले डबल करो. सो डबल करो, डबल मतलब सारे एलिमेंट्स को डबल कर दो. ओके, सो इट इज 4 14 2 प्लस 1 2 3. अब इनको ऐड करते टाइम इनको ट्रिपलेट्स कहा जाता है. ट्रिपलेट. तो ये ट्रिपलेट को ऐड कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो. पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ. सो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस 4 विच इज 5, 2 प्लस 14 विच इज 16, 3 प्लस 2 विच इज 5 अगेन. तो 5 16 5 इज द रिजल्ट ऑफ इट. 5 16 5. अच्छा, ये रिजल्ट स्टोर कहां करना है? हमने पहले ही बता दिया था. स्टोर कहां करना है? R1 में. सो रिजल्ट स्टोर होगा R1 में. सो R1 हो जाएगा 5 16 5. पहला ये R1 चेंज हो गया. R2 271. बहुत लोग इसको 271 को डबल कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है 2R2. गाइस, उसमें चेंज स्टोर नहीं करना है, चेंज R1 में करना है. ओके, सो R2 को डबल किया, R1 के साथ ऐड किया, R1 में चेंज किया. जो भी चेंज था वो R1 में हमने परफॉर्म किया था. अगर कोई चेंज R2 में करना है तो आपको R2 पहला लिखना पड़ेगा और यहाँ पे R2 में चेंज स्टोर है ये बताना पड़ेगा. यहाँ पे गलतियां मत करो. ओके, सो सर थर्ड रो तो इन्वॉल्व ही नहीं था. तो 3 to 5 रिमेन्स एज इट इज. ओके, सो चेंज देखो आप, 271 चेंज नहीं हुआ, 3 to 5 चेंज नहीं हुआ, सिर्फ R1 चेंज हुआ. ओके, और यहाँ पे सिमिलर टू का साइन विच मींस इक्विवेलेंट. ओके, सो ये एक वैलिड रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने परफॉर्म किया कि किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और किसी भी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड या सबट्रैक्ट कर लो. ओके, सो दिस इज अ वैलिड रो ऑपरेशन. एक काम करेंगे हम लोग. ओके, इसी तरह से हम लोग कोई कॉलम ऑपरेशन भी देखेंगे. ओके, कॉलम वाइज भी हम लोग ये चीज परफॉर्म करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, ओके, अगर मैंने ये एक मैट्रिक्स दिया 1 1 3 2 4 5 3 2 1. ओके, अब मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं आप ठीक से ध्यान दो. ओके, सो मैं ये कर सकता हूं गाइस, C2 - C1. सर ये कैसे किया आपने? ओके, C2 - C1 मतलब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना है मुझको, बरोबर है सर. लेकिन आपने तो कहा था कि किसी भी रो को मल्टीप्लाई करो विद सम स्केलर, नॉन जीरो स्केलर ऑब्वियसली, और फिर ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो. वही तो किया है गाइस. C2 - C1 का मतलब क्या है? C2 प्लस -1 C1. सो किसी भी रो को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप और उन मल्टीपल्स को आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी दूसरे रो या कॉलम के साथ. ओके, सो C2 प्लस -C1 का मतलब है C2 - C1. तो आप ये कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म दिस. ओके, सो अगर C2 - C1 परफॉर्म किया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ओके, रिजल्ट देखो क्या है. कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं होगा. सर कैसे? अरे कॉलम 2 में चेंज होने वाला है, कॉलम 2 में चेंज होने वाला है. ओके, तो परफॉर्म कर दो. 1 - 1 0, 4 - 2 2, 2 - 3 -1. दैट इज द रिजल्ट ऑफ इट. कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, वैल्यू स्टोर्ड इन कॉलम 2. ओके, तो C2 - C1 हमने परफॉर्म कर लिया. सर ये C2 प्लस C1 भी कर सकते थे हम लोग, या कर सकते थे. C2 प्लस C1 अगर इस पे आगे हमने कर लिया, समझो C3 प्लस C1 चलेगा. ये वैल्यू स्टोर्ड इन व्हाट, जिसका नाम पहले लिखा है C3. सो C3 प्लस C1 किया तो गाइस चेंज किस में होने वाला है? C3 में. तो कॉलम 1 वैसे ही रहेगा 1 2 3, कॉलम 2 वैसे ही रहेगा 0 2 -1, कॉलम 3 चेंज हो जाएगा C3 प्लस C1. सो ये और ये ऐड होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 3 + 1 which is 4, 5 + 2 which is 7, 1 + 3 which is 4. So that is the result. I hope you understood this. Okay, so column transformation भी possible है, row transformation भी possible है. So आप C1 + 2 C2, C1 - 3 C2 ये सभी भी कर सकते थे. ओके, मैंने एक एग्जांपल बता दिया. समझो इसी में मैं आप कर रहा हूं, देखो इसी में कर रहा हूं मैं. ओके, कॉलम 1 प्लस डबल ऑफ कॉलम 2, वैल्यू स्टोर्ड इन कॉलम 1. ओके, कॉलम 1 प्लस डबल ऑफ कॉलम 2. सो कॉलम 2 डबल होगा क्या? नहीं. चेंज कॉलम 2 चेंज होने वाला है? नहीं, कॉलम 1 चेंज होगा सिर्फ. कॉलम 2 तो हेल्पिंग कॉलम है, हेल्पिंग कॉलम, वो कॉलम 1 को चेंज करने के लिए हेल्प कर रहा है वो. ओके, तो देखो अभी इसको परफॉर्म कराऊंगा मैं. कॉलम 1 कौन है? 1 2 3, ये कॉलम 1 है. आप रफ में कर सकते हैं इनिशियली, जब तक आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होता तब आप अलग से कॉलम्स निकाल के या रोज निकाल के अलग से आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं. लेकिन एक्चुअली बाय टाइम प्रैक्टिस के साथ आपको ये मेंटली सॉल्व करना है, इधर ही सॉल्व करना है. वो अभी मैं अलग से कर रहा हूं. देखो कॉलम 1
प्लस डबल ऑफ कॉलम 2, सो डबल करो, चलो इसका डबल करो, इन तीनों का डबल, तो 2 का 0 का डबल 0, 2 का डबल 4, -1 का डबल -2, मल्टीप्लाई करो, मतलब डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0 रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2। ऐड करो, ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी बीच में है, अब यहां पे ऐड, ओके, सो ऐड कर लोगे तो चेंज किसमें स्टोर होने वाला है गाइस, कॉलम 1 में। क्या चेंज होने वाला है, 1 + 0 1, 2 + 4 6, 3 + -2 मतलब 3 - 2 which is 1, कॉलम 2 वैसे ही रहेगा, कॉलम 3 वैसे ही रहेगा, कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं है, ओके, सो ये परफॉर्म आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ये आपने रफ में किया है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, C1 + 2 C2, C1 - 2 C2, C1 - ½ C2, R1 + 2 R2, R1 + 3 R2, ये सभी आप परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो को या कॉलम को कांस्टेंट के साथ, नॉन जीरो स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन एलिमेंट्स को आप किसी भी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक बड़ा सेंटेंस था, लेकिन आई होप यू विल, ओके, वापस एक बार पीछे जाके सुन लो मैंने जो कहा है, ओके, और समझ लो जो मैंने कहा है, ठीक है। सो दीज आर द वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड विद द रोज एज वेल एज विद द कॉलम्स। Okay, so friends, I had told you 3 things which you can perform in elementary transformation. Okay, I'll repeat them again. सबसे पहला चीज है आप किन्हीं दो रो को स्वैप कर सकते हैं, किन्हीं दो कॉलम्स को स्वैप कर सकते हैं, वो अलाउड चीज है। दूसरी चीज है आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर मतलब रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, उस रो को चेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल्स को, किसी भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल को किसी भी दूसरे रो के या कॉलम के, ओके, किसी भी दूसरे रो के या कॉलम के साथ, एलिमेंट्स के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब R2 को ऐड कर लिया R1 के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं उस केस में, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कुछ प्रैक्टिस हम लोग आगे भी करेंगे। लेकिन अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्ट्रिक्टली नो, ओके, जो चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते टाइम, वो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ओके। तो स्ट्रिक्टली नो फॉर व्हाट ऑल थिंग्स गाइस, आप किन्हीं दो रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपने R1 × R2 कर लिया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, ये आपने लिख दिया ऐसे, R1 × R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप इसको ऐड कर सकते थे, R1 + R2, ओके, दैट इज ओके, लेकिन R1 × R2 नॉट ओके, C1 × C2 नॉट ओके, ये आप नहीं कर सकते। किसी भी स्टोर करो, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। कॉलम 1 × कॉलम 2 करके कॉलम 1 में स्टोर करो या कॉलम 2 में स्टोर करो, अलाउड नहीं है, ओके। दूसरी चीज, कॉलम 1 अपॉन कॉलम 2 या रो 1 अपॉन रो 2, ये भी अलाउड नहीं है। वैल्यू स्टोर्ड इन एनीथिंग, C1 या वैल्यू स्टोर्ड इन R2 जो भी है, ये अलाउड नहीं है, ओके। सो R1/R2 अलाउड नहीं है, C1/C2 वैल्यू स्टोर्ड इन C1 हो या वैल्यू स्टोर्ड इन C2 अलाउड नहीं है। आप किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी भी दूसरे रो के साथ कर सकते हैं, ओके, ये अलाउड नहीं है। आपको लगेगा सर ये तो अलाउड है, R1 प्लस, आपने अभी गाइस R1 + R2 में एक रो को दूसरे रो के साथ, एक रो को स्केलर किसी भी स्केलर के साथ, नॉन जीरो स्केलर के साथ ऐड करना, ओके, या सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। मतलब क्या सर, मतलब ये अलाउड नहीं है। R1 + 3 कर लिया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, नॉट अलाउड। हाँ, R1 + 3 R2 कर सकते थे आप, R1 + 3 ट्रिपल R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर R1 के साथ ऐड करो, वैल्यू R1 में स्टोर करो, ये चलता था। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को स्केलर के साथ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। C1 - 2 मतलब कॉलम 1 में से 2 निकाल दिया, कॉलम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं अलाउड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ऐड विद द कांस्टेंट, सब्ट्रैक्ट विद द कांस्टेंट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। सर डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, R1 / 2 कर सकते हो, ये वैलिड है,
अरे ये तो आपने बताया नहीं सर। अरे बताया गाइस, ओके, लेकिन आपको समझा नहीं है, सिर्फ फॉर्म अलग है। R1 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या हुआ? R1 डिवाइड बाय 2 का मतलब हो गया R1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। बात तो एक ही है ना, वैल्यू स्टोर्ड इन R1 को हाफ से। मैंने अभी भी बताया था कि ये सेकंड ऑपरेशन बताया था, आपको याद होगा तो, किसी भी स्केलर के साथ आप, नॉन जीरो स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, दैट इज अलाउड। मतलब R1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब R1 के एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना। सो मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट अलाउड है, डिवाइडिंग विद अ कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम अलाउड है, लेकिन एडिंग अ कांस्टेंट टू अ रो और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट फ्रॉम अ रो और कॉलम इज नॉट अलाउड। ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नो फॉर दिस। प्लीज ये नोट कर लो, दीज आर डोंट्स, दीज आर नॉट डूज। ओके, दीज आर डोंट्स इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप नहीं कर सकते, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, सो मल्टीप्लाइंग टू रोज, मल्टीप्लाइंग टू कॉलम्स, ओके, डिवाइडिंग टू रोज, डिवाइडिंग टू कॉलम्स, ओके, ये आप नहीं कर सकते। एडिंग अ कांस्टेंट और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, ये चीज अलाउड नहीं। सो मैंने जो 3 चीजें अलाउड बताई है, उन 3 चीजों में आपको इसमें काम करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये चीजें आप कर सकते हैं। सेकेंडली और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो भी आप परफॉर्म मत करो, यहां पे मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन वो भी आप परफॉर्म मत करो। ओके, और वो चीज है आप अगर C2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वैल्यू स्टोर्ड इन R1, ऐसा नहीं करना है। किसी भी रो को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, या किसी भी कॉलम को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू कॉलम में ही स्टोर करो, रो में मत स्टोर करो। मतलब रो ऑपरेशन परफॉर्म करके कॉलम में वैल्यू स्टोर करना, या कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करके रो में वैल्यू स्टोर करना अलाउड नहीं है। ओके, सो सिंपल सी चीज है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी सिंपल टू रिमेंबर कि अगर R1 प्लस R2 कर रहे हो तो वैल्यू R1 में स्टोर करो या R2 में स्टोर करो, वो तुम्हारी मर्जी, समझ रहे हो। लेकिन R1 प्लस R2 करके C1 में स्टोर कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वापस एक बार रिवाइज करके, वापस एक बार रिवाइंड करके आप देख लो क्या क्या अलाउड है और क्या क्या स्ट्रिक्टली नो है। ओके, प्लीज रेफर दिस, डोंट डेयर टू यूज दिस ऑपरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एनी अदर ओके एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जहां भी आपको यूज करना है वहां पे जो कर सकते हो और जो नहीं कर सकते वो आपको याद रखना जरूरी है। कोई कोई बच्चे ये परफॉर्म करके आ जाते हैं, ओके, एंड दे गेट 0 मार्क्स फॉर दैट। सो प्लीज रिमेंबर, okay, don't perform these you can say operation, these are not valid elementary transformations. यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कुछ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप ये पहला एग्जांपल देख सकते हो, मैंने आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है। 2x2 मतलब उसका ऑर्डर हो गया, 2 रो है, 2 कॉलम है। R1 R2 रो के नाम होंगे R1 R2 और कॉलम के नाम होंगे C1 C2, रिमेंबर दिस। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली इस पे आपको 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं 1 बाय 1 सीक्वेंस में। परफॉर्म दिस एंड देन परफॉर्म दिस। सबसे पहले हम लोग ये परफॉर्म करने का सोचेंगे गाइस। इसको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये थर्ड ऑपरेशन है। मैंने थर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ओके, वो ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ओके, थर्ड ऑपरेशन है। तो यहां पे हमको अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है गाइस, तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, 1 बाय 1 विल चेक इट आउट। ओके, देखो सबसे पहली चीज तो ये लिख दिया मैंने। अब एक चीज क्लियर है कि इसमें चेंज किसमें होने वाला है, R2। तो जिसका नाम पहले लिखते हो उसमें चेंज स्टोर करो, R2। तो R2 में चेंज होने वाला है, तो R1 मैंने कॉपी कर लिया, 2 3 मैंने कॉपी कर लिया, उसमें चेंज नहीं होने वाला। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, R2 माइनस डबल R1। सो देखो क्या करना है, पहले तो डबल ऑफ R1, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर करो ना इधर, नहीं चेंज नहीं करना है, ये रफ में करो आप। डबल R1, सो इनको डबल कर लिया तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 डबल कर लिया, ये हो गया डबल R2, डबल R1, आई एम सॉरी 2 R1 माइनस R2। सो रो 2 क्या था, 1 माइनस 5, सो 1 एंड माइनस 5। सो 1 माइनस 5 ये है R2 माइनस डबल R1। सो R2 माइनस ओके डबल R1, ये हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं गाइस। तो ये परफॉर्म होने के बाद कैसे दिखेगा, देखो 1 माइनस 4 करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3 है, और माइनस 5 माइनस 6, सो माइनस 5 माइनस 6 विल बी माइनस 11 over here।
-5 -6 -11 हो गया। ओके, तो जिनको नहीं समझा उनको वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ, ये जरा ठीक से देखो। ओके, थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे मैं उसको परफॉर्म करता हूँ। R2 माइनस डबल R1, R2 मतलब 1 - 5, R2 माइनस डबल ऑफ R1, R1 है 2 3। सो पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो आप अंदर, मतलब वो हो जाएगा 4 6। पूरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, स्केलर मल्टीप्लाई, और फिर 1 एंड -5 और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्शन तो आ जाना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो। 1 - 4 हो गया -3 और -5 - 6 हो गया -11। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड। ओके, उसके बाद आप ये देख सकते हो सेकंड ऑपरेशन उन्होंने क्या कहा है, देन परफॉर्म, मतलब ये होने के बाद ये परफॉर्म करो, R2 डिवाइड बाय -11। सो सेकंड रो को -11 से डिवाइड करो। सर ये चलता है? हाँ चलता है। मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट स्केलर और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम इज अलाउड, लेकिन एडिंग अ कांस्टेंट या सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम इज नॉट अलाउड। डोंट्स एक बार देख लो। ओके, ये अलाउड है। सो ये परफॉर्म होने के बाद चेंज किस में होने वाला है, सेकंड रो में वापस। सो फर्स्ट रो ऐसे ही हो गया, सेकंड रो को डिवाइड बाय -11 करो। सेकंड रो को मतलब इन दोनों को, -3 upon -11 3/11, -11 upon -11 1। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट। सर फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है या वैल्यू आ सकता है मैट्रिक्स का? यस, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, जीरो हो सकता है। ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। I hope you have understood this row transformations। जो अभी जो मैंने किए वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, ये एक एग्जांपल देखो जिसमें मैंने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिए, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब एक चीज बता रहा हूं गाइस, याद रखो, एक सजेस्टेड चीज है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस को और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को मिक्स मत करो। मतलब अगर किसी सम में आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करो तो पूरा सम रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ परफॉर्म करो, और अगर आप किसी सम में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करो तो पूरा सम कॉलम के साथ करो। ऐसे मत करो कि पहले R1 R2 स्वैप कर लिया, फिर C1 C2 स्वैप कर लिया, फिर R1 प्लस R2 कर लिया, फिर C1 प्लस C2 कर लिया, एक ही सम में मिक्स। ऐसा सजेस्टेड नहीं है। It is suggested that for a complete problem use either elementary row operations or use elementary column operations. Okay, don't mix them. That is a suggestion. अब ये चीज आप देख सकते हो, 1 - 2 3 4 परफॉर्म C2 प्लस डबल C1 वैल्यू स्टोरिंग C2। ओके, सो एक काम करेंगे, C2 मतलब कॉलम 2, चलो कॉलम 2 बाजू में निकल लेते हो, ये है कॉलम 2 प्लस डबल ऑफ कॉलम 1 जो है 1 3, सो इसका डबल। सो कॉलम 2 प्लस डबल ऑफ कॉलम 1। सो इसको आप परफॉर्म कर सकते हो, पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -2 4, ये ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 6 हो गया। ओके, अब ऐड कर लो, ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -2 + 2 0। ओके, तो लेकिन लिखो कहां स्टोर होने वाला है ये, C2 में, तो यहाँ पे कॉलम 2 में, कॉलम 1 वैसे ही रहेगा। सो कॉलम 1 मैंने कॉपी कर दिया, अब कॉलम 2 चेंज कर रहा हूं। ओके, एंड 4 + 6 which is 10, सो यहाँ पे ऐसे आ गया गाइस, कॉलम 2 चेंज हो गया। ओके, 1 0 3 10। I hope you understood this. Okay, now they are expected to perform the second, they are expecting us to perform the second operation. Second operation क्या है देख लो, कॉलम 2 को 10 से डिवाइड करना। कॉलम 2 को अलाउड है, यस, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बाय कांस्टेंट इज अलाउड, ऐड विद अ कांस्टेंट टू अ रो और सब्ट्रैक्ट विद अ कॉलम कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम नॉट अलाउड। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, कॉलम 1 तो वैसे ही रहने वाला है, डिवाइड बाय, तो C2 डिवाइड बाय, तो ये C2 है, कॉलम 2 डिवाइड बाय 10, 0/10 0, 10/10 1। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। Getting it? Okay, I hope you have understood the row operations and column operations. My you can say warnings which you have to remember. जो do's मैंने कहे जो कर सकते हो, जो don'ts मैंने कहे जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, strictly no for them. Okay, वो याद आपको रखने हैं। Okay, so these were the two examples. This used elementary row transformations and this used elementary column transformations. ओके गाइस, अब जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा क्या सर? नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा। ओके, सो आगे के जो मेथड्स है, मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही आपको बताया था इनवर्स फाइंड करने में, या फिर जो आगे के मेथड्स है टू सॉल्व लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ओके, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली दिस इज। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहली चीज इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब कैसा बनाना है एक बार चेक कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है मैं यहां पे लिख देता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, याद रखो, और बाकी सारे 0। ये बोल बोल के आपको याद हो जाएगा। यू हैव टू से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई रिपीट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको वैसा बनाना है हमको। ओके, वी हैव टू मेक दिस और कन्वर्ट दिस इनटू दैट मैट्रिक्स। सो आप देख सकते हो लगभग जो एलिमेंट ऑलरेडी वैसे है, देखो 1 1 चाहिए, वहां पे 0 चाहिए सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 0 चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे 0 चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे 1 चाहिए, ये ठीक है। मतलब ये एलिमेंट इतने ऑलरेडी यू कैन से फॉर्म में है। लेकिन गाइस ये 4 जो एलिमेंट हमको चाहिए ये वैसे नहीं है। देखो ये 4 ये आइडेंटिटी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो हमको उनको कन्वर्ट कर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, उस फॉर्म में नहीं है। तो अब हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो हमको लगभग इसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4 चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, 4 और अराउंड 4 यू कैन से। कभी कभी 2 चीजें एक साथ भी हो जाती है समटाइम्स। अब इसमें देखेंगे हम लोग। ओके, हमको कैसे करना है। तो इसको पहले 0 करने का मैं सोचूंगा। देखो, तो सबसे पहले मैं इसको 0 करने का सोचूंगा। अगर मुझको इसको 0 करना है तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे 1 है, ओके, ये 2 है, यहां पे 1 है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो समझो ये 2 था, तो मैं सीधे कर सकता हूं ना R2 माइनस R1, इस रो को इस रो के साथ रो ट्रांसफॉर्मेशन करने, तो इस रो को इस रो के साथ सब्ट्रैक्ट करके 2 माइनस 2 0 हो जाता है यहां पे। ओके, लेकिन यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 1 है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं सेकंड रो से। आप देख लो मैं जो कर रहा हूं और उसका पर्पस ध्यान रखो। ओके, सेकंड रो को 2 से, एक्चुअली वैल्यू किसमें स्टोर होगा गाइस, पहले R2 में या R1 में। You have to say it when you are listening to the video. You have to say it. R2 में स्टोर होगा, R1 में, R2 में। ओके, सो चेंज R2 में स्टोर होगा, R1 में कुछ नहीं होने वाला, R3 में कुछ नहीं होने वाला। सर ये आपने क्यों किया और इसको करके क्या फायदा होगा, देखो बता रहा हूं। डबल R1, लेकिन डबल करके R1 में चेंज नहीं करना है। ओके, वो सिर्फ हेल्प के लिए है। डबल R1 और वो R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। एक काम करो, चलो R2 बताओ क्या, R2 क्या है, 2 1 0 2 1 0 माइनस डबल ऑफ R1 1 0 0, R1 है 1 0 0, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सो गाइस अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0 0 हो जाएगा ना, 2 0 0, 2 1 जा और 2 0 जा 2 0 जा, माइनस 2 1 0, सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आने वाला रिजल्ट, और वैल्यू किसमें स्टोर होने वाला, R2 में। सो R1 वैसे ही रखता हूं, R3 वैसे ही रखता हूं, और यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। आप देख सकते हो अपने पर्पस का एक चीज और हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0। अब 0 0 1 ये हमको यहाँ पे लाना है, जो अभी फिलहाल अपने पास नहीं है। तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स चेक आउट व्हाट वी शुड डू, what we should do, okay, to make this 0 now. Guys, इसको भी 0 बनाना है एक एक करके। अब ऑब्वियसली इसको 0 बनाना है 3 को, तो इसके साथ ऑपरेट करके फायदा नहीं है क्योंकि ये 0 है। सो 3 प्लस इसका डबल करो, इसका ट्रिपल करो, ये तो 0 ही रहने वाला है। तो इसके साथ ऑपरेट करो R3 को, ये रो 3 है और ये रो 1 है। अब मैं क्या लिख रहा हूं आप ठीक से देखो, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, मतलब समझो ये 3 बन गया। ओके, अब सब्ट्रैक्ट किया तो यह 0 आने वाला है ना, मतलब आपको क्या करना जरूरी है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम R3, थर्ड रो के साथ सब्ट्रैक्ट करो। तो R1 में चेंज होता है क्या, नहीं, जो पहला लिखा है उसमें चेंज होता है, R3 में चेंज होता है। R1 का तो हेल्प लिया। ओके, सो R3 माइनस ट्रिपल R1। सो ये करने के बाद हाउ इट विल लुक, अच्छा एक चीज मैं भूल गया लिखना, ऐसा सिमिलर टू का सेम। अब ये देख लो आप, ये कैसा लिखेगा, 1 0 0 है, ठीक से देखो।
R3 में चेंज है तो 0 1 0 वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ 3 नहीं था, सॉरी गाइस 1 था, तो वो तो मैंने बताया आपको 3 होने के बाद कैसा दिखेगा वो। R3 माइनस ट्रिपल R1, अब देखो R3, ये है R3 माइनस ट्रिपल ऑफ R1, ये है 1 0 0। अब करो तो सब्ट्रैक्ट। ओके, 3 अंदर जाएगा तो 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूं मैं डायरेक्टली 3 0 0। करो सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 0 5। ओके, तो फिलहाल और एक एलिमेंट अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बन गया। ओके, अब गाइस यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, एक एक करके देंगे। अब इसको 0 करना है तो इसके साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके साथ करके फायदा नहीं है, क्योंकि 2 को 0 के साथ ऑपरेट करोगे 2 ही रहने वाला है। 2 प्लस डबल, 2 माइनस डबल, 2 माइनस डबल ऑफ 0 क्या रहेगा यार, 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 होता है। 2 माइनस 0 2, हमको इसको 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ऑपरेशन क्या होगा, देखो R3 माइनस डबल R2, वैल्यू स्टोर्ड इन R3, आई एम सॉरी, हां यस सही है, R3 माइनस डबल R2, मतलब दिस माइनस डबल ऑफ दिस माइनस डबल ऑफ दिस माइनस डबल ऑफ दिस। ओके, सो अभी मैं अलग से रफ में नहीं कर रहा हूं काम, पहला रो वैसे ही, दूसरा रो वैसे ही, प्लीज देख लो। R3 माइनस डबल R2, मतलब ये है R3 और ये है R2, सो दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेगा दिस माइनस डबल ऑफ दिस। बताओ 0 माइनस डबल ऑफ 0 0 रहेगा, 2 माइनस डबल ऑफ 1 2 माइनस डबल ऑफ 1 0 हो जाएगा, और 5 माइनस डबल ऑफ 0 5 रहेगा, 5 माइनस डबल ऑफ 0 2 इंटू 0 तो 0 होता है, तो 5 माइनस 0 इज 5 रहेगा। ओके, सो अब ये भी अपना 0 बन गया, ये भी आ गया, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहिए यहाँ पे। अब कॉमन सेंस यूज करो गाइस, 5 को 0 के साथ नहीं हो सकता है, इसको 1 करना है तो। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, सर R3 माइनस 4 कर दो ना सर, R3 माइनस 4 कर लो, हो जाएगा 0 माइनस 4, क्या होगा पता है ना, ये अलाउड है करना, बिल्कुल नहीं। R3 को 4 से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, दीज आर स्ट्रिक्ट नो। ओके, याद होगा आपको। ओके, कांस्टेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो अगर मैंने इसको R3 को डिवाइड बाय 5 किया, अलाउड है सर, या मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 किया, 1 बाय 5 इनटू R3, ये अलाउड है। मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट टू अ रो or column, dividing by a constant to a row or column is allowed, adding a constant to a row or column, subtracting a constant from a row or column is not allowed. So इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 1 by 5 R3, value stored in R3। अब देख लो ये कैसे बन जाएगा, 1 by 5 R3 1 0 0 0 1 0। सर ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि फर्स्ट दो रो में चेंज नहीं होने वाला। 1 by 5 into R3, so इसको 1 by 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 into 1 by 5 0, 0 into 1 by 5 0, 5 into 1 by 5, how much is 5 into 1 by 5 1। ओके, सो ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I लिखो या फिर I3 लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जिनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यही पता नहीं है तो मेरे रिवीजन लेक्चर्स पहले देख लो, उसके बाद यू कैन चेक इट आउट दिस। ओके, सो ये हमने 1 2 3 और 4 रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस किया, कन्वर्ट किया या फिर ट्रांसफॉर्म किया, हम लोग कह सकते हैं। I hope you have understood today's lecture, guys. Okay, so today's lecture was focused on what? Elementary transformations, either row transformations or column transformations. Very essential thing. Please, okay, see the lecture very properly, take notes, okay, so that in the next example we can apply these things. Okay, thank you very much.